وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شاہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں منمانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حمزہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنلز کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشکارا نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سنے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھرا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی ضروری نہیں، مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے منکر نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو بھاگ چلے۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل؟ اس نے شاہانہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا، میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شمع شاہانہ کیا کرے گی۔ تب تو مجھ سے گلا بھی مت کرنا کیونکہ تم نے تو اپنی سی پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سنا کر رہی تھیں۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے اول فول بکری ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مصلحتیں گرد ہو جاتی ہے۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تب وہ دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جبار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا مانس تھا مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اتلے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور جا سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور یوں ہی پل کر سوتا۔ مگر شینی کے جسم و جاں میں جوالا دہک رہا تھا، وہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈھلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی اس قدر میرو یاد آتا اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی ہیں۔ پس غصہ اندر ہی اندر دو چند ہوتا جاتا تھا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیند جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس کے پر ستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بجوانے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا
मगर था तो इंसान। कुछ अरसा इसने शैनी से दूरी बनाए रखी, फिर दिल से मजबूर हो गया। हालांकि वो चाहता न था कि शहाना की जिंदगी में लौट कर जाए, जबकि वो अब ब्याता था और ये बात इसके नजदीक मायूब थी। मगर शैनी को खुद पर जरा भी काबू न रहा। वो लगातार उसे किसी न किसी तौर संदेशे भजवाती रही। उसके पैगामात ना थे, वो खुदा के वास्ते देती थी कि बस एक बार मिलो। मेरो कब तक दिल पर जबर करता, जबकि महबूबा दिल नवाज रो रो कर बुलाती हो। वो पत्थर दिल न रो सका। दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई। मोहब्बत का खतरनाक खेल फिर से जारी हुआ कि जुदाई ने जलती पर तेल का काम किया था। फिर तो ये आग ऐसी भड़की कि आंखों के आगे दबीस पर्दे पड़ गए और सिद्ध बुझी जाती रही। रात निस्फ शब गुजर जाती तो जब्बार गहरी नींद सो जाता। शैनी जान खतरे में डालकर मीरो से मिलने निकल खड़ी होती। एक रात जब वो खेतों की तरफ मीरो से मिलने निकली तो कुत्तों ने उसे आ लिया और भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। इसकी खुशकिस्मती कि मीरो करीब ही था, जिसने उसे कुत्तों से बचाया और उन्हें डरा कर भगा दिया, वरना सारी बस्ती इस रात जाग कर उन पर हमला आवर हो जाती। अब खेतों में मिलने में खतरा था। शैनी ने मीरो को मजबूर किया कि वो उसके घर आकर मिले। ये तो और भी पुरखतर राह थी, मगर बुरा वो इश्क का कि उसे लुत्फ ही खतरनाक राह पर चलने में आता है। बिलाखिर महबूबा के मजबूर करने पर वो राजी हो गया। ये कहना चाहिए कि उसकी मत मारी गई कि ये दोनों जब्बार के घर के अंदर मिलने लगे। जब रात गहरी हो जाती और जब्बार दिन की मशक्कत से थका हारा नींद की आगोश में बेखबर सो जाता, तो जान को खतरे में डालकर मीरो शैनी से मिलने उसके घर आ जाता। वो इसके आने के वक्त से जरा पहले दबे कदमों डेवरी में जाकर कुंडी खोल देती थी। वो रात के अंधेरे में उसके पास आ और वो फटने से कबल चला जाता। ये रोज तो न मिलते थे, महीने में 3-4 बार मीरो को जान हथेली पर रखकर शीनी की खुशी की खातिर कांटों की इस बार को फलांगना पड़ता था, क्योंकि वो घर से बाहर उससे मिलने से कासिर थी। इस रोज शाम से ही बादल घेरे हुए थे। मीरो को शीनी का संदेशा मिला कि आज मुलाकात का मौसम है। मौसम वाकई सहाना था। आज रात तुमको आना ही होगा। ये संदेशा उसे मिला तो वो शाम से ही रात का इंतजार करने लगा। जब्बार काम से घर आया। वो आज बहुत थका हुआ था। सारा दिन थ्रेशर पर चढ़कर भारी काम निपटाया था। तमाम फसल से भूसा अलग करके समेट भी दिया था। आज वो बेहद थक गया था। बादल देखकर उसने कहा, शीनी, रात को बारिश जरूर होगी, खाना दे ताकि मैं सो जाऊं। खाना खाकर बारिश के ख्याल से वो सहन में सोने की बजाय उस कमरे में जाकर सो गया जहां उसकी बीवी मीरो से मिलती थी। घर में 2 ही कमरे थे। दूसरे कमरे में सास, ससुर और देवर सो रहे थे। आज वो भी सहन की बजाय अंदर जा सोए थे कि बारिश होगी तो नींद खराब होगी। अब शीनी परेशान थी कि मीरो को संदेशा भेज चुकी थी। खुले सहन में उसके साथ बाहर बैठना खतरे की आवाज बेना था। ऊपर से बारिश हो गई तो उसके कमरे में 2 ही चारपाइयां थीं। एक पर जब्बार सो रहा था और दूसरी चारपाई पर उसने अपने दोनों लड़कों को सला दिया था। खुद उसके सोने को कोने में एक खत्तिया पड़ी रह गई थी। अभी बौंदा बांदी शुरू न हुई थी। रात के आधी बीत गई थी। उसने घड़ी देखी और दबे कदमों सहन पार करके बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोलकर आ गई। उसके कान सहन की जानिब लगे थे। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसने खत्तिया को उस चारपाई के साथ बराबर करके बिछा दिया जिस पर उसके बच्चे सो रहे थे। कमर सीधी करने को वो लेट गई। खंगा किए बगैर मीरो दबे कदमों से कमरे में आ गया। उसे देखकर शैनी की जान निकल गई। शैनी ने आहिस्ता से बाजू से पकड़कर फर्श पर बैठ जाने का इशारा किया और खुद भी उसके साथ जमीन पर बैठ गई। इतने में बारिश के गिरने की आवाज आने लगी। वो उसके कान के पास मना लेकर सरगोशी में बोली, मैंने तुमको बुलवा तो लिया, फिर मना न करवा सकी। अब बाहर बरामदे में चलो, यहाँ जब्बार और बच्चे सो रहे हैं। किसी की आंख खुल गई तो। जुमला अधूरा छोड़कर वो उसको कमरे से बाहर ले आई। खुदा की करनी के हल्की बारिश चश्म जदन में तेज हो गई और फिर मूसलाधार मीना बरसने लगा। पाए रफ्तन न जाए मानदन। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें कि खटका हुआ और सुसर के खांसने की आवाज आई। वो समझ गई कि सर बारिश का जायजा लेने बरामदे में आने वाला है। तुम गंदम की कौंडी के पीछे हो जाओ, ये एक नजर भैंस और गाय पर डालकर वापस चला जाएगा। इतने में लाठी टेकते सर बरामदे में आ गए।
ये दोनों जहां बैठे थे वहां ही बैठे रो गए। सच शुक्र के बूढ़े की बीनाई कमजोर थी और दिए की रोशनी मध्यम। उसने इधर देखा जिधर ये बैठे थे। जानवरों को बाड़े के अंदर पाया तो मुड़कर अपने कमरे में चला गया। तब उनकी जान ने जान आई। अगरचे मीना तेज बरस रहा था, मगर अब मेरो को मजीद खतरे की दावत देना थी। वो बरसती बारिश में चलने को हुआ, तभी बच्चे के रोने से जब्बार की आंख खुल गई। बीवी को कमरे में न पाकर उसने लालटेन हाथ में पकड़ी और बरामदे में आया। उसके कदमों की आहट सुनकर तुरंत मेरो कौंडी के पीछे छुप गया और शीनी तेज कदमों से कमरे की तरफ ले। उसने शौहर को दहलीज पर जा लिया। किधर चली गई थी? मैं देखने गई थी कि मवेशी सहन में तो नहीं रह गए हैं। बारिश हो रही है तुझसे, वो ये कहती जल्दी से बच्चे के पास गई और उसको पहलू में लिटाकर खुद उसके पास लेट गई। भनभनाता शौहर भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। वो अब उसके सो जाने का इंतजार करने लगी। मीरो बदस्तूर कूंदी के पीछे खड़ा था। मिट्टी की कूंदी जिसमें गंदम जखीरा करते थे, उस वक्त वही उसके जान बचाने का जरिया बनी थी। बारिश जोर दिखाकर अब थम गई थी। जब्बार को नींद न आ रही थी। वो उठकर बरामदे में आया और वहां पड़ी चारपाई पर ढे गया। चारपाई ऐसी जगह बिछी हुई थी कि कूंदी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जब्बार के सो जाने का इंतजार लाजिम था, जिससे मीरो का दम घुटने लगा। मगर जब्बार के खरांटों की आवाज ने उसको सहारा दिया। वो गहरी नींद सो गया था, मगर सिर को नींद न आ रही थी। उसको अंदर कोठरी में गर्मी लगने लगी। वो चारपाई उठाकर सहन में लाया और बैरूनी दरवाजे के पास डालकर सो गया। अब मीरो ने खुद को कहा, वाह देहाती की अकल। औरत के कहने में आया और मौत के गड्ढे में आ फंसा। बूढ़ा सोने का नाम न ले रहा था और रह रह कर करवटें बदल रहा था। कमबख्त ने चारपाई भी ऐसी जगह डाली है कि उधर से निकलकर दरवाजे तक जाने का रास्ता मसदूद हो गया है। तभी उसके सोने का इंतजार लाजिम था। कमरे के अंदर हब्स के बाइस दम घुटने लगा। शैनी का बच्चा कसमसाया और रोने लगा। शैनी ने घबराकर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं उसके रोने से शौहर की आंख न खुल जाए, और वो उठ बैठे। इस तरह चुप होने की बजाय दम घुटने से बच्चे ने और जोर लगाकर रोना शुरू कर दिया। घबराकर शैनी ने कसकर उसका जबड़ा अपनी मुट्ठी में भींचा कि उसकी सांस बंद हो गई और साथ रोने की आवाज भी। बच्चा तड़पकर ठंडा हो गया। शैनी ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर सांस देखने लगी। अभी उसके हवास ठिकाने ना आए थे कि दूसरे बच्चे ने पहलू बदला और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज को खामोश करने के लिए उस औरत ने फिर से वही अमल दोहराया। चंद सेकंड में ही दूसरा बच्चा भी खामोश हो गया। जब्बार और सर दोनों सो गए तो शैनी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती कौंदी के पीछे आई और मीरो को बाजू से खींचकर कमरे में ले आई। बोली, अब तो किसी तरह बाहर निकल जा। बच्चे फिर से जाग गए तो बाहर नहीं जा सकोगे। लेकिन तुमने उनको खामोश कैसे किया? मन्ने को हाथ से बंद कर दिया था। उसे शक हुआ। कहा, देखो तो कहीं सांस तो हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई? हाँ, हो तो गई है। अरे कहीं मर तो नहीं गए? माँ ने बारी बारी दोनों की नाक पर हाथ रखकर सांस जांची। हाँ, मर गए हैं। अब तो निकल, अपनी जान बचा। वो खांस रहा है, वो अभी नहीं सोया। खटक की आवाज से इधर को निकलकर पिछली दीवार से बाहर कूद जा। औरत का हौसला देखकर मीरो का सर घूम गया। उसे लगा कि उसके पास दिए की मध्यम रोशनी में इन मासूम बच्चों की माँ नहीं, कोई डाइन खड़ी है। बेख्तियार उसके मन से निकला, अफ अफ, तू औरत है कि डाइन? ये कहकर वो कमरे की अकबी खिड़की से निकल भागा। पिछली जानिब की दीवार पर चढ़ा और धम से बाहर कूद गया। आवाज पर सुसर ने पुकारा। ये कैसी आवाज थी? अरे कौन कौन करता? वो उठ बैठा। भागने वाला भाग गया और वो कौन कौन करता रहा। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मीरो उस औरत की सफाकी से डरकर ऐसा गया कि पलटकर गांव भी नहीं आया। वो हमराज दोस्तों से कहता था, यारो समझ में नहीं आता कोई औरत ऐसी संगदिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे बच्चों को ही मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया। दूसरी बार मिलने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि शैनी के संदेशे इस अंदोहनाक वाक़े के बाद भी मिला करते थे।